very higher taste sooner or later. So I will tell you a very brief introduction on about the person who is going to deliver the today's talk. A very special talk from a very special person. So his name is His Grace Dheer Gaur Prabhu. So by profession, Prabhu ji is a CA. उन्होंने जो CA थी वो 2012 में complete करी. Then he joined ISKCON Ujjain as a full-time brahmachari in 2016. Now currently he's a co-president of ISKCON Ujjain, and he has a and he preaches in various colleges and various diversity of people around MP, and he has more than 3.5 years of working experience in CA. So he used to work in Indore. So now he's co-president in our ISKCON Ujjain. So we'd like to welcome His Grace Dheer Gaur Prabhu ji. So if you also want have a little bit gratitude to you, if you want to show your gratitude, you can type in the chat box Hari Bol for Prabhuji. So thank you all so much, Prabhuji, for taking out your such a valuable time and trying to deliver such wonderful lessons in to all these people, the chosen ones of our Uddipan people. So everybody is requested to please switch on your camera so that जो हमारा talk हो थोड़ा personal हो, वरना कौन कहाँ पे चला जाता है किस दुनिया में, we don't know. So everybody is requested to please at least on the camera. So I like to hand over the dais to His Grace Dheer Gaur Prabhu ji for delivering such on a very important and wonderful topic of the day. Hare Krishna. Thank you so much. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadam Hiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Tapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sargana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakantam Sha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminate Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarane Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurat Vishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataruhasya Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna. तो हम आप सबका स्वागत करते हैं इस शिक्षामृत सीरीज में, और सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद देना चाहते हैं। आप काफी लंबे समय से हमारे साथ बने हुए हैं। उद्दीपन कार्यक्रम में आपने भाग लिया। उद्दीपन के बाद आप सब कुछ लोग डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स में रजिस्टर किए, उसमें आपने सेशंस अटेंड किए। किसी ने गीता रहस्य में आपने भाग लिया। लाइफ लेसन्स फ्रॉम लेजेंड्स में आप लोग बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मुझे सार्थक जोशी जी का चेहरा देखकर याद आ रहा है, इज वेरी कंटिन्यूअस इन आवर लाइफ लेसन्स फ्रॉम लेजेंड्स। थैंक यू सो मच। और रिसेंटली आप लोगों ने वृंदावन यात्रा करी, वर्चुअल वृंदावन यात्रा। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप सबको काफी मजा आ रहा है हमसे जुड़ के। और वाकई में एक्चुअली आध्यात्मिकता, कृष्ण गीता में कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भक्ति करने का एक मजा ही अलग। हम कहते हैं छोटी सी कहावत जिसमें कहते हैं माया दास सदा उदास और कृष्ण दास बिंदास। सो माया के जो दास होते हैं वो हमेशा उदास होते हैं, इसलिए उनके चेहरे आप देखेंगे तो सूखे हुए, मुरझाए हुए, उदासी में, गुमसुम में ऐसे रहते हैं। लेकिन कृष्ण के जो दास होते हैं, कृष्ण के जो भक्त होते हैं, वो हमेशा एकदम बिंदास, हंसते हुए, खेलते हुए, गाते हुए, मुस्कुराते हुए। तो दैट इज कृष्णस डिवोटी। और यही तो हम सब चाहते हैं, isn't it?
सार्थक जोशी जी दोबारा हंस रहे हैं। सो ऐसे ही स्माइल हमेशा बनी रहे, इसलिए कृष्ण का भक्त बनना बहुत जरूरी है। तो माया के भक्त बनेंगे तो उदास रहना पड़ेगा हमेशा जीवन में। सो ये शिक्षा अमृत सीरीज हमने इसलिए चालू करी है। वाकई में ये जो शिक्षाएं हैं, शिक्षा आजकल लोगों को सुनना बहुत पसंद नहीं, शिक्षा देना पसंद है, isn't it? लोकल भाषा में यहाँ पर एमपी में कहते हैं, कृपया यहाँ ज्ञान ना बांटें, यहाँ सभी ज्ञानी हैं। जब भी कोई एक दूसरे को ज्ञान बांटना चाहता है तो लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन ज्ञान दूसरों को देना जरूर चाहते हैं, isn't it? So, लोगों को सुनना आजकल पसंद नहीं है, सुनना हैबिट से निकल गया, लेकिन लोग जो है दूसरों को बताना चाहते हैं। अभी कोरोना की बीमारी लोगों को ढंग से समझ में नहीं आई, लेकिन हर शहर में से कोई ना कोई डॉक्टर निकल गया जो बता रहा है हाँ मेरे पास कोरोना की दवाई है। अरे पहले बीमारी को तो समझो, बीमारी क्या है, बाद में दवाई बताना। सो हर कोई जो है अपना ज्ञान बांटना चाहता है, हर कोई अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है, इसलिए कई बार ये शिक्षा जो है ये सुनने में अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक शिक्षा ऐसी है जो अमृत के समान है। वो कौन सी शिक्षा है? वो आध्यात्मिक शिक्षा है, isn't it? So, आध्यात्मिक शिक्षा सुनने में इतनी अच्छी लगती है, पालन करने में और भी अच्छी है। जीवन में जैसे अमृत पान करने से किसी को एक जीवन प्राप्त होता है, किसी की जीवन आयु बढ़ती है, शरीर में शक्ति बढ़ती है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक उपदेशों को हम सुनते हैं, कृष्ण की वाणी हम सुनते हैं, भगवान के नाम को हम जब श्रवण करते हैं, तब उससे एक व्यक्ति को वाकई में जीवन प्राप्त होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर सो रहा है तो सोए हुए व्यक्ति को कैसे जगाया जाता है? आवाज लगा के, उसका नाम बुला के, isn't it? किसी को सांप ने डस लिया है तो उसको कैसे ठीक करते हैं? मंत्रोच्चारण के द्वारा। उसी प्रकार से अगर किसी को माया ने पकड़ लिया है तो उसको कैसे ठीक करते हैं? उसको कृष्ण नाम का मंत्र जप करना चाहिए। एनेसी औषधि माया नाशी बारे लागे, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगे। सो भगवान कृष्ण के नाम के मंत्र का जप करने से माया बहुत दूर चली जाती है और व्यक्ति एकदम जागृत हो जाता है। जागृत हो जाता है मतलब एक्टिव हो जाता है, लाइक दैट। इसलिए कृष्ण भक्त बिंदास, वो हमेशा बिंदास रहते हैं, उन्हें कोई दुख नहीं, उन्हें कोई टेंशन नहीं, दे आर ऑलवेज हैप्पी। तो शिक्षामृत सीरीज का सबसे पहला सेशन हमने जो लिया है दैट इज रिकिंडलिंग विजडम। रिकाइंडलिंग विजडम, रिकिंडलिंग विजडम दोनों बोल सकते हैं। सो इस शब्द का मतलब क्या है? व्हाट इज रिकिंडलिंग विजडम? रिकिंडलिंग या फिर इसको कहते हैं दोबारा से जलाना, दोबारा से जगाना, जागृत करना। किंडल मतलब जागृत करना या फिर जलाना, किसी चीज को प्रज्वलित करना, और रिकिंडलिंग मतलब दोबारा से करना। इसका मतलब ये है कि ये हम भारतवासी, ये हमारा सौभाग्य है कि हमको इतनी महान धरोहर मिली है आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में, isn't it? ये भारत का सौभाग्य है, भारत विश्व का राजा है, राजगुरु है इस मामले में कि उसकी आध्यात्मिक धरोहर जो है वो और किसी के पास नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भारत वाले इसको भूल गए, पीपल हैव फॉरगॉटन। भारतवासी इसको भूल गए और आंखें बंद करके वो पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं कि सक्सेस मतलब पैसा कमाना। एक्चुअली ऐसा नहीं है। सो ये रिकिंडलिंग विजडम, ये हमारी धरोहर जो है, ये हमारा ज्ञान जो है, हम इसको दोबारा जागृत करना चाह रहे हैं। अच्छा, वाकई में हम भूल गए कि नहीं? रामायण महाभारत तो सबने सुना है, लेकिन कैसे हम भूल गए इसके लिए एक छोटा सा वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग लाइन पे रहिएगा। सो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। Just a second. Yeah. हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेके आए थे वो किसके लिए लेके आए थे? लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण के लिए लाए थे। लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण जी के लिए। लक्ष्मण के लिए। को पता है राम और लक्ष्मण कितने भाई थे? 4 दो ओके 4 2 भाई थे, पता नहीं 2 ही थे। 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत और एक और। कंस और रावण में क्या रिश्ता था? भाई थे दोनों, हाँ कजन्स थे। नहीं ये नहीं पता मुझे। डिग्री नहीं ना तेरे पास? कंस और रावण में क्या संबंध था? आई डोंट नो। ये सब जानने समझने के लिए अक्ल चाहिए। दोस्त होंगे, दोनों दुश्मन थे। दुश्मन का तुम मेरा दुश्मन हो। कंस किसके मामा थे? रावण के। कंस
दुर्योधन के। मेरा तो नाम नहीं है। भीम किस में थे, रामायण में महाभारत? रामायण। भीम, छोटा भीम। दुर्योधन रावण के बड़े भाई थे या छोटे? दुर्योधन भाई, छोटा भाई था। कंस को किसने मारा था? राम ने। राम ने। कंस को किसने मारा था? भीम ने। नहीं, हाँ भीम ने। कुंती कौन थी? कुंती कुंती राम की माँ। राम की माँ। राम की माँ। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? शूर्पणखा दुर्योधन की बहन थी या पत्नी? कौन? सरपणा क्या थी? दुर्योधन की बहन थी या पत्नी? सरपणा उसकी बहन थी। बहन थी। गांधारी और द्रौपदी में क्या रिश्ता था? गांधारी द्रौपदी, गांधारी भाई था द्रौपदी का। गांधारी कौन थी तो? गांधारी, गांधारी कंस की बहन। So this is condition of India. ये हम भारतवासियों की अभी की स्थिति है। जिस चीज के ऊपर हमें नाज हुआ करता था, हमें गर्व हुआ करता था, अभी हमारी वहां पे दुर्गति हो गई है। So हमें ये नहीं पता राम लक्ष्मण कितने भाई थे, हमें ये नहीं पता कंस कौन थे, रावण कौन थे, किसने किसको मारा था, कुंती कौन थी। एंड वी क्लेम आवरसेल्व्स टू बी प्राउड इंडियंस। हमें हमारी आध्यात्मिकता के ऊपर गर्व है। सो इसलिए हमारी जो विजडम है, हमारी जो धरोहर है, वाकई में वो गुम हो गई है, उसकी बत्ती बुझ गई है। सो हमको दोबारा जागृत करना है। इसलिए दिस रिकिंडलिंग विजडम सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो जोक्स अपार्ट, बट वेरी ट्रू। आप सबने बहुत लंबी जर्नी की है गीता रहस्य में। आपने गीता के 18 अध्याय के ऊपर बहुत कुछ सुना 9 सेशंस में। डिस्कवर योरसेल्फ सेशंस में आपने भी बहुत कुछ सुना, और वृंदावन यात्रा भी आपने बहुत अच्छे से अटेंड करी। सो ऑलरेडी आपको बहुत कुछ ज्ञान मिल गया है। अब इन सेशंस में जो हमारे शिक्षामृत सेशंस हैं, इनमें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये एक प्रकार से थोड़ा सा उच्च स्तरीय ज्ञान, दिस इज लिटिल बिट हायर। सो ये बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप लोग को इसको सुनने में काफी मजा आएगा, और आप लोग को इसको जानकारी लेने में भी काफी मजा आएगा। अभी आप लोग इस ज्ञान की थोड़ी और गहराई में जा रहे हैं, सो यू विल बी वेरी हैप्पी। आपको ये सारी चीजें सुन करके, जान करके, यू विल फील वेरी हैप्पी। सो रेडी फॉर दिस जर्नी? ओके, सो हम एक श्लोक लेते हैं भगवत गीता से। आई विल शेयर दिस स्क्रीन फॉर यू। ये भगवत गीता के 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, जो कृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये श्लोक में बोल रहा था, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति जो है, इसको करना सुसुखम, इट्स वेरी इजीली परफॉर्म। बहुत प्रसन्नता के साथ, सुख के साथ करी जाती है। हमें बहुत कष्ट नहीं करना है, हमें हिमालय में जाके तपस्या नहीं करना है, हमें आग के बीच में गोला लगाकर वहां पर बैठ के तपस्या नहीं करना है, या बर्फीले तूफान में जाकर तपस्या नहीं करना है। हमें कुछ नहीं करना है। हमें हमारे घर में रहना है, भगवान के भक्तों से श्रवण करना है, और भगवान के नाम का जप करना है। नाचो गाओ खाओ, भगवान का प्रसाद खाना है, भगवान के कीर्तन में डांस करना है, इतना ही करना है। सो इट्स सुसुखम, इजंट इट? सो यहाँ पर कृष्ण जो कह रहे हैं, राज विद्या राज गुह्यम, ये जो गीता का ज्ञान है, कृष्ण जो ज्ञान दे रहे हैं, ये विद्या, ये ज्ञान वाकई में सारे ज्ञानों का राजा है। राज विद्या, इट्स द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। और राज गुह्यम, गुह्यम शब्द मतलब इट इज सीक्रेट, ये बहुत ही सीक्रेट है। आप देखिए, ये जितने भी सेशंस आप लोग अटेंड कर रहे हैं, ये सारा ज्ञान बहुत बेसिक है, लेकिन आपको किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा। आप यदि दुनिया में किसी स्कूल कॉलेज में चले जाएं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए ये ज्ञान क्या है? ये सीक्रेट है, और सीक्रेट्स में भी सीक्रेट्स है, इसलिए राजगुह्यम। सो राज विद्या राजगुह्यम और पवित्रम, इसको सुनने से सभी जीव पवित्र हो सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान अपने आप में पवित्र है। इसलिए उत्तमम, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, इजंट इट? प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, और इसकी वैलिडिटी हम हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार इस्कॉन के एक सन्यासी श्रीमद इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, जो विदेश से हैं, आप इस्कॉन के बारे में जानते ही,
सो विदेश से हैं, एक बार वो एक मंदिर में अगर ट्रैवल करते हुए, तो हम लोग हमारी हेयर स्टाइल रखते हैं, सिर पे बाल नहीं रखते हैं, हेड शेव रखते हैं, सो हम जल्दी जल्दी हेड शेव करते हैं। सो एक बार वो एक मंदिर में गए, वहां पर उन्होंने देखा कि एक मंदिर में, हम ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं सभी भक्त लोग, तो बाथरूम में काफी बड़े बड़े बाथरूम है, तो वहां पर 10 भक्तों को एक साथ बिठा दिया गया और एक भक्त जो है सबका हेड शेव कर रहा है, सबका सिर मूंड रहा है, और इतनी स्पीड में मूंड रहा है कि एक भक्त के लिए उसने 1 मिनट लिया, 10 मिनट में उसने 10 भक्तों का हेड शेव कर दिया। तो महाराज देख करके हैरान, बोले वाह, इतना स्किल टैलेंट, 1 मिनट में एक व्यक्ति का सिर मूंड दिया। तो महाराज आश्चर्यचकित, उससे पूछते हैं कि क्या भैया आप पहले नाई थे क्या? नहीं, मैं नाई नहीं, मैं एक कसाई था। सो ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, ये ज्ञान है इतना महत्वपूर्ण कि ऐसे कसाईयों को भी उन्होंने भक्त बना दिया। ऐसे लोग जो इतने पाप कर्म किया करते थे, इतने उनके हृदय में करुणा नहीं थी, ऐसे अनेकानेक लोगों को उन्होंने महान महान भक्त बना दिया। Isn't it? तो जो शास्त्रों में हम स्टोरी देखते हैं कि नारद मुनि जाते हैं और मृगारी को भक्त बनाते हैं, जो पहले शिकारी हुआ करता था लेकिन अभी बहुत महान भक्त बन गया, अरे वो हमारी आंखों के सामने हमें देखने को मिल रहा है। हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं कितने पापी लोग हैं जो अभी महान महान भक्त बन चुके हैं, सारे पाप कर्म करना उन्होंने छोड़ दिया और भगवान के नाम में इतना आनंद में वो लोग नाम लेते हैं, इतना आनंद में झूमते हैं, इतना खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो विदेशी जिनका दैनिक कार्य ही 4 पाप कर्म करना है डेली, मांसाहार, जुआ, अवैध स्त्री संग, यौन संबंध, वो सारे विदेशी अभी एकदम सारा पापमय जीवन उन्होंने छोड़ दिया है और भारतीय वेशभूषा में, धोती कुर्ता में आकर, तिलक लगाकर कृष्ण के नामों का जप कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? Isn't it? इसको कहते हैं प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम। ये प्रत्यक्ष रूप में हमें दिख रहा है। दिस इज प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली हमारी आंखों के सामने हमें दिख रहा है। और ऐसे ही हम देख रहे हैं कि हम बचपन से किसी न किसी प्रकार से श्रवण कीर्तन करते आ रहे हैं, सत्संग अटेंड करते आ रहे हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जब से हम इस्कॉन के संपर्क में आए हैं, इन कुछ 2 महीनों में ही हमारे जीवन में कितने परिवर्तन आ गए। आप सब अपने जीवन का ही सोच सकते हैं, आप सबके जीवन में कितने परिवर्तन आ गए। कितने सारे लोगों ने भगवान के नाम का जप करना चालू कर दिया, isn't it? कितने सारे लोगों ने पाप कर्म करना छोड़ दिया, कितने सारे लोगों ने भगवान की सेवा करना चालू कर दिया है। लोगों के लिए सद्भावना हमारे हृदय में जागृत हो गई है, हमारे हृदय में अच्छी अच्छी भावनाएं जागृत हो गई है। इसलिए ये जो ज्ञान है ये बहुत श्रेष्ठ है। ये भगवत गीता का ऐसा ज्ञान है कि अगर सही स्रोत से सुना जाए तो एक जीवन, एक व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, एक जागृति ला सकता है, उसका हृदय परिवर्तित कर सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञान क्या है? व्हाट इज नॉलेज? ज्ञान की परिभाषा बहुत सारी हो सकती है, बट बेसिकली ओवरऑल रूप में अगर देखा जाए, ज्ञान कहते हैं 3 चीजों को। नॉलेज मीन्स 3 थिंग्स। पहला है जड़ वस्तु के बारे में जानना, मैटर, इंग्लिश में कहते हैं मैटर या जड़ वस्तु। वो जड़ वस्तु क्या है? कृष्ण गीता में कहते हैं 8 चीजें मिलाकर जड़ वस्तु बनती है। भूमिर आप अनल वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। कृष्ण कह रहे हैं कि 8 चीजें मेरी जड़ प्रकृति है या फिर भिन्ना प्रकृति है। कौन सी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीजें हमने सुनी हैं, और मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 चीजें हैं, ये कृष्ण की एक्सटर्नल एनर्जी है, भिन्ना प्रकृति है, निकृष्ट शक्ति है या फिर भौतिक पदार्थ हैं। ऑफ कोर्स ये ग्रॉस से सटल होता जा रहा है, ये सूक्ष्म, धीरे धीरे सूक्ष्म होता जा रहा है। जैसे पृथ्वी से सूक्ष्म है जल, जल से सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म है हवा, हवा से सूक्ष्म है आकाश, आकाश से सूक्ष्म है मन, मन से ज्यादा और सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा सूक्ष्म है अहंकार। सो दिस इज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये सूक्ष्मतर बनते जा रहे हैं। बट बेसिकली ये 8 चीजें भौतिक हैं। दिस इज मटेरियल साइंस, भौतिक हैं। इसलिए आप देखोगे कि हम लोग हमारे नॉलेज में जितनी चीजें पढ़ते हैं वो सारी की सारी इन 8 के अंदर आ जाएंगी। आप डॉक्टरी कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, आर्ट्स एंड साइंस कर रहे हैं, होम साइंस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सारा का सारा नॉलेज, अवर ऑल नॉलेज कम्स इन दिस 8 कैटेगरीज। इन 8 चीजों से, 8 चीजों के ऊपर ही आश्रित है, इनके ऊपर ही आधारित है।
इनसे ही डील करता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं ये मेरी निकृष्ट शक्ति है, नीचे वाली शक्ति है, इन्फीरियर, दिस इज इन्फीरियर। अच्छा ये इन्फीरियर है, तो व्हाट इज सुपीरियर? सुपीरियर है इसके भी परे, वो है आत्मा, जिसको कहते हैं चेतना। सो उसके लिए भी गीता में भगवान एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं। इसी के जस्ट अगला श्लोक, जीव भूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत अपरयामितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे पराम। जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, सो अपरयामितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे पराम। इसके अलावा एक और प्रकृति है जो परा प्रकृति है, जो सुपीरियर है। क्या? जीव भूता महाबाहो, वो जीवात्मा, ययेदम धार्यते जगत, वो एक जीवात्मा इस पूरे जगत को धारण करके रखा हुआ, वो जीवात्मा इस पूरे जगत को चलाता है। ये पूरा जगत, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ दिस मटेरियल एनर्जी कंसिस्टिंग ऑफ 8 थिंग्स, जो हमने अभी बताई 8 चीजें। 8 चीजों से डील करने वाली ये पूरी भौतिक प्रकृति में सारी चीजें वो हैं। आपके सामने जो मोबाइल है, जो लैपटॉप है, वो भी भौतिक है। आपके सामने जो टेबल है वो भी भौतिक है। आप जिस चेयर पे या बेड पर बैठे हैं वो भी भौतिक है। इसका मतलब उसमें फीलिंग्स नहीं है, उसमें विलिंग नहीं है, उसके अंदर थिंकिंग नहीं है। पूरा जमाना सारी चीजें ये भौतिक चीजों पर डील कर रहा है। लेकिन इसको डोमिनेट कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको चलाता कौन है? वो है आत्मा, जीवात्मा। इसलिए वो जीवात्मा जो है, जिसे साइंस में एंटी मैटर कहा जाता है, उसे वाकई में हम आत्मा कहते हैं शास्त्रों की भाषा में। वो कृष्ण की उच्चतर शक्ति है, सुपीरियर एनर्जी, दैट इज कृष्ण सुपीरियर एनर्जी। ये मिलकर बना होता है सच्चिद आनंद से। आपने गीता रहस्य कोश में सीखा हुआ, आत्मा जो है सच्चिदानंद है, उससे बना होता है। तो हमने बताया था ज्ञान 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक है भौतिक चीज को जानना, कि आध्यात्मिक चीज को जानना, और तीसरा है इस भौतिक और इस आध्यात्मिक के नियंता कौन है, ये किसके नियंत्रण में है, उसको भी जानना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजंट इट? टू नो द कंट्रोलर ऑफ बोथ, उस परम ईश्वर को जानना, ये बहुत जरूरी है। समस्या क्या है, हम इस भौतिक जीवन में बहुत एडवांसमेंट कर चुके हैं, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं, लेकिन हम 2 पॉइंट को मिस कर जाते हैं। हम भगवान की सुपीरियर शक्ति आत्मा के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, और इस इंफीरियर और सुपीरियर को कंट्रोल करने वाले ईश्वर के बारे में हमें ज्ञान नहीं। हम क्या करते हैं, हम भगवान की शक्ति को ही इमिटेट करते हैं, नकल करने का प्रयास करते हैं। भगवान ने जो क्रिएशन करी है वहीं से सीख कर उसी के द्वारा हम हमारी कुछ नई क्रिएशन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का कंसेप्ट कहाँ से आया? हेलीकॉप्टर का कंसेप्ट आया मच्छर से। जब हम मच्छर को देखते हैं तो मच्छर जैसे फ्लाइट उड़ान भरता है, द हेलीकॉप्टर इज द सेम थिंग। लेकिन समस्या ये है कि हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है, कितना डीजल एरोफ्यूल जलाना पड़ता है, हमें एक सेटअप चाहिए, हेलीपैड चाहिए, उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। लेकिन मच्छर के साथ ऐसा कुछ नहीं, उसका फ्यूल ऑटोमेटिक है, किसी का भी खून पिए का चालू हो जाएगा। उसको हेलीपैड की जरूरत नहीं, उसे ज्यादा हवाओं की जरूरत नहीं, उसे उसके ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। एक हेलीकॉप्टर बनाने के लिए हमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आपको एक हेलीकॉप्टर खरीदना है सो यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 11-12 करोड़ रुपीस। आपको 11-12 करोड़ रुपए देना पड़ेंगे, तब जाके आप एक हेलीकॉप्टर खरीद पाएंगे। और हम मच्छरों को दिन भर में ऐसे ऐसे कर कितने मच्छरों को ऐसे मार देते हैं, पता नहीं कहाँ से इतने मच्छर आ जाते हैं, इजंट इट? सो दिस इज गॉड्स क्रिएशन, कि भगवान जो है वो अपनी अचिंत्य शक्ति से इतने इन्यूमरेबल हेलीकॉप्टर्स उन्होंने बना दिए। और हमको हेलीकॉप्टर बनाने के लिए वी नीड अ परफेक्ट सिस्टम, कंपनी एंड फैक्ट्री। ऐसा नहीं है कि 2 हेलीकॉप्टर आपस में मिलेंगे, या फिर जैसे एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप आपस में मिले और एक पाम टॉप का जन्म हो गया। ऐसा नहीं होता है, isn't it? लेकिन भगवान की क्रिएशन में ऐसा नहीं। भगवान की क्रिएशन ऐसी ऑटोमेटिक है कि भगवान, उन्होंने एक पुरुष बनाया है, एक स्त्री बनाया है, हर योनि में दोनों आपस में मिलते हैं और एक बच्चा हो जाता है। So this is automatic. So that is Krishna's creation. इसलिए ज्ञान की संपूर्णता यही है कि हम पदार्थ के बारे में तो जाने, भौतिक शक्ति के बारे में तो जाने, साथ में उस आध्यात्मिक शक्ति के बारे में जाने, और दोनों को कंट्रोल जो कर रहा है भगवान, उसके बारे में जाने। दिस मेक्स नॉलेज कंप्लीट। तो शास्त्र इसी ज्ञान की बात करते हैं, इसलिए शास्त्रों को पूर्ण माना गया है। शास्त्र जो ज्ञान की बातें करते हैं वो पूर्ण है, isn't it? तो चलिए हम कंट्रोलर की बात करते हैं। भौतिक ज्ञान को हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप सबके पास बहुत है, हमसे ज्यादा भौतिक ज्ञान है।
लेकिन हम जो बात करेंगे वो आध्यात्मिक ज्ञान की बात करेंगे और उनके कंट्रोलर। तो लेट अस बिगिन। भगवान। सो भगवान शब्द की संज्ञा शास्त्रों में अलग अलग तरीके से दी जाती है। कोई बोलता है कि साहब मेरे लिए तो मेरे माता पिता भगवान है, कोई बोलता है नहीं मेरे लिए तो मेरा प्रेमी भगवान है, तुझ में रब दिखता है। कोई बोलता है नहीं मेरे लिए तो साहब ये देवी देवता भगवान है, वो देवी देवता है। नहीं, अपने मानने से नहीं होता है। देयर इज अ परफेक्ट ऑथोराइज्ड डेफिनेशन ऑफ गॉड जो शास्त्रों में दी गई है, isn't it? जैसे ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यश शास्त्रीय ज्ञान वैराग्य चाप्युत्तस षण्णाम भगांगनाम। सो कह रहे हैं कि भगवान शब्द की संज्ञा है कि उनके पास 6 चीजें पूर्ण रूप में होनी चाहिए। शक्ति, वीर मतलब स्ट्रेंथ, बल होना चाहिए, धन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, यश होना चाहिए, रिनंसिएशन वैराग्य होना चाहिए और सौंदर्य होना चाहिए। ये 6 चीजें जिसके पास परफेक्टनेस में है वो व्यक्ति भगवान है। हमारे पास यहाँ पर किसी के पास बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसके पास दिमाग ना हो, ज्ञान ना हो, बुद्धि हो, या शरीर में शक्ति ना हो। अगर किसी के पास शरीर में शक्ति है तो देखने में सुंदर नहीं होगा, अगर सुंदर भी है शक्ति भी है तो हो सकता है उसके पास धन नहीं होगा, मूर्ख होगा। सो ये कॉम्बिनेशन 6 चीजों का परफेक्टनेस में हमें कहीं नहीं मिलता है। आप ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसमें आधा घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए, 2 घंटा दीजिए, 1 दिन दीजिए, इसको हर जगह कैलकुलेशन को फिट करके देखिए कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें हमको ये 6 चीजें परफेक्टनेस में मिलती हैं। आपका जवाब सिर्फ एक ही व्यक्ति पर आएगा, वो है कृष्ण। दिस इज अवर चैलेंज, ओपन चैलेंज। आपका होमवर्क है, आप पूरा दिन लीजिए, आप 1 हफ्ता लीजिए, हम अगले शनिवार को दोबारा मिलेंगे, पर दिस इज द चैलेंज। एक ही व्यक्ति पर आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी, वो है कृष्ण, isn't it? सो हम उस चीज में भी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट दैट इज अ डेफिनेशन। सो एक परिभाषा ये है। उसी प्रकार से कुछ लोग बोलते हैं गॉड मीन्स हु इज जनरेटर, हु इज ऑपरेटर, हु इज डिस्ट्रॉयर, दैट इज आल्सो गॉड। या दैट इज आल्सो ट्रू, वो भी सही है। जो सृष्टि करता है, जो पालन करता है, जो संहार करता है, वो भी सही है। उस डेफिनेशन के अनुसार भी भगवान है। सो अगर हम बात करें इसके अनुसार, और कृष्ण भगवद गीता में एक और बहुत अच्छी परिभाषा देते हैं जो बोलते हैं कि भगवान को जो जान लेगा वो शांति को प्राप्त कर लेगा। कृष्ण से भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। कृष्ण से कहते हैं कि भोक्तार अहम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता कौन है? हु इज द एंजॉयर? कृष्णा, ही चैलेंजिंग हिमसेल्फ। सर्वलोक महेश्वरम, दुनिया में जितनी चीजें हैं सबका स्वामी कौन है, सबका ओनर कौन है, मालिक कौन है? दैट इज कृष्णा। सुहृदम सर्वभूतानाम, और जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने जानवर हैं, जितने पशु पक्षी कीट आदि, सबका बेस्ट फ्रेंड कौन है? वो भी कृष्ण है। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को समझ ले, ये 3 परिभाषाओं के अनुसार कृष्ण को जान ले, तो स शांतिम आपनोति, वो अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकता है, शांति के परे परमानंद को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है। इसलिए लेट अस बिगिन विद दिस डेफिनेशन। प्रोपराइटर, मालिक। मालिक किसको कहते हैं? कोई जवाब देना चाहेगा? हु इज कॉल्ड अ प्रोपराइटर? किसी चीज का मालिक कौन है? फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने आपका लैपटॉप है या आपका मोबाइल है, सो क्या आप उसके मालिक हैं? कैसे कह सकते हैं आप मालिक? हाँ, मालिक को इंग्लिश में ओनर कहते हैं। थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो, बट वी वांट अ डेफिनेशन, नॉट ट्रांसलेशन। कोई बोलना चाहेगा? एनीवन? यू कैन रेज योर हैंड, आवर वॉलंटियर्स कैन अनम्यूट यू। ओके, चैट बॉक्स में बहुत सारे चैट आ रहे हैं। बाय रजिस्टरिंग, क्योंकि हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, ऑपरेटर, वेरी गुड। बाय रजिस्टरिंग, कृष्णा, जिसको आपने खुद बनाया है, वेरी गुड, जिसकी सृष्टि हमने करी है। ठीक है, एक एक करके चलते हैं। तो somebody is saying, क्योंकि हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है, और उस गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए मैंने एक ड्राइवर को रखा है, तो क्या ड्राइवर मालिक हो गया? नहीं। तो ऑपरेटर को जरूरी नहीं है मालिक कह सकते हैं, isn't it? दूसरा कोई कह रहा है क्योंकि बाय रजिस्टरिंग, आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय रजिस्टरिंग। अच्छा, जिसके नाम पे रजिस्टर्ड,
ठीक है, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है लेकिन मेरी गाड़ी कोई और चला रहा है, मैंने किसी को गिफ्ट कर दी, तो मालिक कौन है? मैं हूं कि जिसको गिफ्ट करी वो मालिक। सो अगेन बाय रजिस्टरिंग आल्सो वी कैन नॉट से। कोई कह रहा है कि जिसने क्रिएट किया है, वेरी गुड, तो मैंने एक मकान बनवाना था और वो मकान बनवाने का ऑर्डर मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्रिएट किया है, तो कॉन्ट्रैक्टर मालिक हुआ कि मैं मालिक हुआ? क्रिएट तो कॉन्ट्रैक्टर ने किया है। So you see, any definition will not be perfect, isn't it? इसका मतलब असली मालिक वो है जिसका उस संपत्ति पर मालिकाना हक है, जो संपत्ति हमेशा उसके पास ही रहती है और कोई भी व्यक्ति उसकी उस संपत्ति से उसको उस संपत्ति से छीन नहीं सकता, उसकी संपत्ति को उससे छीन नहीं सकता। That is called the perfect definition of proprietor, isn't it? So जिसका मालिकाना हक है, जो हमेशा उसके पास में रहती है, वही उसको एंजॉय करता है, साथ में उसकी संपत्ति को उससे कोई छीन नहीं सकता। So ये मालिक है। अब हम इससे अगर हम समझें तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, वाकई में मालिक कौन है। लटोर जी आप तो बहुत खतरनाक चीज बता रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं था, हमने सोचा ही नहीं था। सपोज आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर में चींटियों ने एक अपना घर बना रखा है, बिल बना रखा है, या फिर उन्होंने अपना छेद बना रखा है, और ऐसे उस छेद में हजारों चींटियां, isn't it? आप खाना बैठे और वहां से लाइन बना के ऐसी चींटियां वहां से जा रही हैं अपना काम करने की। तो बताइए, घर आपका है, उसमें चींटियां रह रही हैं, मालिक कौन है? आप हैं कि चींटियां मालिक? चींटियों को तो लग रहा है मैं मालिक हूं। देखो हमारा घर है, पूरे घर में हम घूम सकते हैं, कहीं भी हम जा सकते हैं, कुछ भी हम उठा सकते हैं, कुछ भी हम खा सकते हैं। सो एक दिन ऐसा आपने चींटियों की उद्दंडता देखी और देखा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो मान ही नहीं रही है, कंट्रोल ही नहीं हो रही है। तो क्या किया हमने? पानी की बाल्टी उठाई और पानी की बाल्टी उठा के चींटियों पे डाल। तो चींटियों का सारा मालिकाना हक वहीं पे खत्म, isn't it? उसी प्रकार से हमको लगता था कि हम इस पृथ्वी के मालिक हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। भगवान ने एक छोटा सा वायरस बनाया और पूरी सृष्टि में डाल दिया, देखो अभी कौन मालिक है, हम मालिक है क्या आप मालिक हो? सो दैट इज कृष्णा's एनर्जी। मैंने कहीं तो एक बहुत अच्छी शायरी पढ़ी थी, किसी ने भेजी थी, उसमें लिखा था कि मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणुओं पर, मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर, कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पर। So that is the meaning. You see, इस सृष्टि को दोबारा कंट्रोल में लाने के लिए भगवान को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक छोटा सा वायरस अगर बना दे जिसको हम देख भी नहीं पाएंगे, दिस एंटायर थिंग कैन बी कम अंडर कंट्रोल। सो भगवान अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। भगवान की शक्ति के एक छोटे से अंश से भगवान पूरी चीजें सही तरीके से अपने कंट्रोल में दोबारा ले सकते हैं। हम जितना चाहें उन चींटियों की तरह प्रयास कर लें, अपने अपने घर बना लें, अलग अलग जगह जाने का प्रयास करें, सो मेनी थिंग्स वी कैन डू। यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें खेल सकते हैं, लेकिन भगवान अगर अपना मालिकाना हक बताना चाहें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम उनके सामने बेबस हैं, isn't it? उसी प्रकार से मान लीजिए कोई व्यक्ति किराए पे रह रहा है, तो जो व्यक्ति किराए पे रह रहा है उसको लगता है मैं इस घर का मालिक हो गया, और वो रेंट देना बंद कर देता है। तो 1 महीना बंद कर दिया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद क्या होगा? उसके ऊपर पुलिस की कार्रवाई हो जाएगी, उसको जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा, उसको जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम ये भी नहीं बोल सकते कि पेपर में हमारा नाम लिखने से, इस जमीन की रजिस्ट्री करवाने से हम मालिक हो जाते हैं। एक्चुअली आप कंसेप्ट समझिए, मालिक किसको कहते हैं? देखिए, ये सृष्टि अनंत काल से चली आ रही और ये सृष्टि अनंत काल तक चलेगी, isn't it? पिछले कितने मिलियंस एंड मिलियंस, लाखों लाखों साल निकल चुके हैं, और ऐसे आगे कितने लाखों लाखों साल जाने वाले, और उनमें से बीच में कहीं एक डॉट के बराबर हम आ गए 70 साल के लिए, और हम बोलते हैं कि हम मालिक हैं। अरे क्या घर से बनाकर लेकर आए थे, या कहाँ लेकर जाओगे, isn't it? ये सारी चीजें यहीं की नहीं रहने वाली। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण, आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, सपोज उज्जैन से इंदौर जा रहे हैं, 1 घंटे की जर्नी है, 1.5 घंटे की जर्नी है, और मैंने मेरी आंखों के सामने देखा है, आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन में, अरे मैंने पहले रुमाल रख दिया, अरे मेरा हाथ रखा था, अरे मेरा पैर रखा था, अरे मेरा ड्रेस रखा था, अरे मेरा बैग रखा था। कितना लड़ाई करते हैं लोग, कितना लड़ाई करते हैं। और कभी कभी ये लड़ाइयां इतनी बढ़ जाती हैं कि हाथापाई हो जाती है।
लोग उठा उठा के ट्रेन में से बाहर फेंक देते हैं लोगों को, isn't it? अरे 1 घंटे की जर्नी है, चुपचाप खड़े होके चले जाओ ना यार, क्यों मालिकाना हक जता रहे हो? ट्रेन आपकी नहीं है, ट्रेन सरकार की। तो उस 1 घंटे की जर्नी के लिए कोई बोलता नहीं मैंने टिकट खरीदा था, बोले टिकट फाड़ के फेंक दिया, आपका टिकट खरीदने से क्या होता है? सो मेनी थिंग्स वी कैन से। उसी प्रकार से सृष्टि अनंत काल से चली आ रही है, अनंत काल तक जाएगी। हम कैसे बोल सकते हैं हमारी जमीन है, हम कैसे बोल सकते हैं हमारा घर है? अरे हमारा घर भी है, हमने घर बनाया, तो घर कैसे बनता है? क्या पैसे से घर बनता है? नहीं। घर को बनाने के लिए आपको मिट्टी चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको सरिया चाहिए, कितनी चीजें चाहिए, पानी चाहिए। क्या पानी हमने बनाया? क्या मिट्टी हमने बनाई? क्या सरिया हमने बनाया? ये भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। भगवान की चीजों को हम लेकर, भगवान की चीजों को मिक्स करके हम कुछ चीज बना रहे, बाद में बोल रहे हैं हम मालिक बन गए। ये तो गलत हो गया ना, कि आपने किसी की चीजें ले ली, किसी की चीजों को मिक्स करके आपने कुछ बनाया, आप बोलेंगे हम मालिक बन गए। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। मान लीजिए एक लेबर है, वही एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर को हमने सारा सामान दिया, मिट्टी भी लो, सरिया भी लो, सीमेंट भी लो, पानी भी लो, ईंट भी लो, पत्थर भी लो, कंक्रीट भी लो, गिट्टी भी लो, सब लो, मकान बनाओ। और उसने मकान बना दिया, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा क्या मेरा मकान? नहीं, क्योंकि दिया मैंने इसलिए मकान मेरा है, पैसा मैंने दिया, सामान मैंने आपको उपलब्ध करा के दिया, मेरा मालिकाना हक है। आप तो सिर्फ लेबर का काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे थे। उसी प्रकार से भगवान की इस सृष्टि में हम थोड़ा सा लेबर का काम करके बोलते हैं हमारा हक है, हम मालिक है। अरे कितनी गलत बात है, ये चोरी नहीं हुई क्या? भगवान की चीज को हम यूज कर रहे हैं बिना उनकी परमिशन के, तो क्या चोरी नहीं हुई क्या? चोरी हुई ना। और चोरी करना पाप होता है कि पुण्य होता है? पाप होता है। पाप का फल क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा? बुरा फल मिलेगा। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वाकई में इस पूरे संसार का, हर चीज का मालिक कौन है। ईशोपनिषद नाम का एक उपनिषद है जिसमें एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर श्लोक आता है, आपने सुना भी होगा, बहुत फेमस भी है, जिसमें कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागृदा कस्वशिद्धनम। कह रहे हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम, इस दुनिया में जितनी चीजें हम देख रहे हैं सारी की सारी ईशावास्यम, भगवान की है। ईश मतलब ईश्वर, ईश्वर की है, isn't it? ईशावासम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस पूरे जगत में जो भी चीजें हम देख रहे हैं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, भगवान की है, भगवान ही सारी चीजों के मालिक है। तो हमारा क्या है? भगवान ने हमारे लिए कोटा, थोड़ा सा हमारा हक जो है, जैसे हमारा कोटा बोलते हैं ना, कोटा हमारा मालिकाना, जिस हमारे उपयोग के लिए जितनी चीज हमारे लिए निकाल के रख दी गई है, उतना हमारा पोर्शन है, हमें सिर्फ वही लेना चाहिए। समस्या क्या है? समस्या है कि हम सारी चीजों को इग्नोर करके हम पूरी दुनिया हमारे कब्जे में करना चाहते हैं। गांधी जी कहते थे देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर इवन वन मैन्स ग्रीड। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति की जरूरत के लिए दुनिया में सब कुछ है, सारे साधन है, सारे स्रोत हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लालच करना चाहे तो एक व्यक्ति के लालच के लिए भी पर्याप्त नहीं। पूरी दुनिया भी उसको मिल जाए तो बोलेगा नहीं मुझे ब्रह्मांड चाहिए, मुझे चांद तारे चाहिए और सितारे चाहिए और पता नहीं क्या क्या चाहिए। सो लालच का कोई अंत नहीं। लेकिन अगर आवश्यकता की बात करें तो भगवान ने सबकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सब कुछ कर रखा है, और मनुष्य लालची हो चुका है। देखो कोरोना की परिस्थिति में लोग दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने पास दबा करके लोग उसको काला बाजारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। ये क्या है? ये लालच है ना। हजारों लोगों की जानें जा रही हैं, हम उनके बारे में नहीं सोच रहे जिनके लिए बनी हुई है, लेकिन खुद पैसा कमाने के लिए हम लोगों की जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। दिस इज ग्रीड, ये लालच है। जब इतना पुण्य, इतना पाप कर्म चल रहा है तो परेशानी तो होगी। रोहित जी शेयर कर रहे हैं एप्पल 300 रुपए किलो हो गया है, और ऑरेंजेस जो हैं 100 रुपए किलो हो गए। कितनी महंगाई चल रही है, क्यों? ठीक है, बेसिकली आप समझ गए। सो दैट इज द मीनिंग। उसी प्रकार से हम मालिक नहीं हैं, वास्तव में भगवान हमें ही सारी चीजें दे रहे हैं। जितनी चीजें भगवान ने सृष्टि करी हैं वो सब भगवान ने बनाई हैं और भगवान के द्वारा ही सप्लाई की जाती। फॉर एग्जाम्पल सब्जियां, एक्चुअली इसमें हजारों लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं। सब्जियां हैं, सब्जियां कैसे बनती हैं? हमें बीज चाहिए। बीज कौन बनाता है? क्या फैक्ट्री में बनाते हैं? नहीं। उस बीज को हम जमीन में लगाएंगे। जमीन किसने बनाई? हमने बनाई? नहीं, वो भी भगवान ने दिया। उस जमीन को हम खेती से करेंगे, उसमें पानी डालेंगे। पानी किसने दिया? वो भी भगवान ने सृष्टि किया। उसमें सूर्य की रोशनी से वो उबर उठेगा,
तो सूर्य किसने बनाया? वो भी भगवान ने दिया। तो हमने क्या किया? फिर हम बोलते हैं हमारी खेती। सो वी डिड नथिंग, हमने सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की, isn't it? बाकी सब तो भगवान ने दिया। जैसे घर में एक छोटी सी बच्ची है, जब बच्ची माँ से जिद करती है नहीं नहीं माँ मुझे खाना बनाना है, खाना बनाना है, तो माँ सोचेगी अगर मैं उसको खाना बनाने दे दूंगी तो ये अपना हाथ जला लेगी, अपने आप को जला लेगी, इसलिए माँ उसको छोटा सा चकला ला के देगी, छोटा सा बेलन ला के देगी, थोड़ा सा आटा गूंथ करके आटा दे देगी, एक नकली तवा दे देगी, नकली गैस दे देगी, ले बैठ खेल जाके। तो सारी चीजें माँ ने दी, और जब फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है कुछ भी बेकार सा, तो बोलते देखो मैंने बनाया, ये मेरा है, मेरा है। सो इजंट इट, ये बच्चों की खेल जैसा नहीं, हम वही तो कर रहे हैं। सब कुछ भगवान ने दिया है। सूर्य को भगवान ने दिया है, पानी को भगवान ने दिया है, सांस हम लेते हैं, हमारी जो जीवन की जरूरत है, द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वो भी भगवान ने दी है। हमें जीने के लिए क्या चाहिए? हमें जीने के लिए सांस लेना चाहिए, वायु चाहिए, वायु भगवान ने सृष्टि की है। पानी चाहिए, वो पानी भगवान ने दिया है। खाना चाहिए, वो खाना भगवान ने दिया है। फल फूल चाहिए, वो भगवान ने दिए हैं। दूध चाहिए, वो भी भगवान ने दिया है। Isn't it? It's a wonderful arrangement Krishna has given us. So भगवान सारी चीजों के मालिक हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, इसको हम जितना एक्सप्लेन करना चाहें, हम 7 दिन तक इसी कंसेप्ट पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे भगवान मालिक है, पर हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, भगवान मालिक तो हैं, मालिक होने के साथ साथ भगवान कंट्रोलर भी हैं। ऐसा नहीं है भगवान मालिक होने के साथ साथ उन्होंने कंट्रोल छोड़ दिया। जैसे घर में पिता मालिक हैं, तो पिता बच्चों के ऊपर कंट्रोल भी करते हैं, कब सही जा रहा है, कब गलत जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे पतंग हम उड़ाते हैं, तो पतंग भले ही आसमान में उड़ रही है, पर अच्छे से कैसे उड़ पाती है? जब कोई व्यक्ति उसको कंट्रोल करता है। ज्यादा ढील दे दी तो चली जाएगी, या ज्यादा टाइट कर लिया तो कट जाएगी। तो थोड़ा ढील देना भी आना चाहिए, कंट्रोल करना भी आना चाहिए। सो कृष्णा इज परफेक्ट इन दैट। इसलिए भगवान का एक नाम है ईश्वर। ईश्वर शब्द का मतलब क्या है? कंट्रोलर, वन हु कंट्रोल्स। हम लोग भी कंट्रोल करते हैं, जैसे आप अपना लैपटॉप कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपना मोबाइल फोन कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपना रेफ्रिजरेटर कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ लोग अपना घर चला रहे हैं, कुछ मालकिन है घर की, घर वाले को चला रही हैं। सो हर कोई किसी ना किसी को कंट्रोल कर रहा है। सो छोटे मोटे ईश्वर तो सभी हैं, लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण है परम ईश्वर। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सो कृष्ण इज परम ईश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनसे बड़ा ईश्वर और कोई नहीं है। Isn't it? तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे कोई नियंत्रण नहीं कर रहा है। इस दुनिया में जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, उनको कोई ना कोई नियंत्रण कर रहा है। Isn't it? मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मेरे सीनियर्स मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, किसी ने मुझे आदेश दिया प्रोजी आपको क्लास देना है, तो उसने मुझे नियंत्रण किया। Isn't it? आप घर में बैठे हैं, तो आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो आपके बॉस आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आप बिजनेस चला रहे हैं, तो आपके कस्टमर्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, जैसा आप मांगना चाहते हैं वैसा आपको करना पड़ेगा। Isn't it? कोई बच्चा है तो उसके माता पिता कंट्रोल कर रहे हैं, कोई घर का स्वामी है तो उसकी वाइफ उसको कंट्रोल कर रही है, कोई घर में पेट डॉग है तो उसको स्वामी कंट्रोल कर रहा है। दुनिया में हर एक जीव किसी न किसी के कंट्रोल में है। अरे हमारा प्रेशर हमारे कंट्रोल में नहीं, उसको भी कोई और कंट्रोल कर रहा है। हमारा खुद का शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो हम कैसे कह सकते हैं हम किसी को कंट्रोल करें? सो हु इज द अल्टीमेट कंट्रोलर? एक व्यक्ति ऐसा है जो बोल सकता है कि जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। वो कौन है? वो है कृष्ण। इसलिए कृष्ण कहा जाता है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे आपने ट्रेन की बोगी देखी होगी ना, कि बोगी नंबर 4 को कौन खींच रहा है? बोगी नंबर 3 खींच रहा है। 3 को कौन खींच रहा है? बोगी नंबर 2 खींच रही है। 2 को कौन खींच रहा है? 1 खींच रहा है। 1 को कौन खींच रहा है? इंजन खींच रहा है। इंजन को कौन खींच रहा है? इंजन को कोई नहीं खींच रहा, इंजन अपने आप से चलता है। उसी प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड को कौन खींच रहा है? सभी जीवात्माओं को कौन खींच रहा है? भगवान खींच रहे हैं। भगवान को कौन खींच रहा है? नहीं, भगवान को कोई नहीं खींच रहा, भगवान स्वयं चलते हैं, इसलिए तो भगवान है। अगर भगवान को कोई खींचेगा तो भगवान कैसे हुए? उनको खींचने वाला भगवान नहीं हो जाएगा। तो भगवान की परिभाषा ही यही है कि जिनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, रादर वो सबको कंट्रोल करते हैं। ये भगवान की परिभाषा है। So that is what Krishna is saying. Krishna is claiming. ऐसे गीता में कितने अनेकों अनेक श्लोक हैं जिसमें भगवान ये सारे कंसेप्ट्स को बहुत क्लियर करते हैं। So ये है कंट्रोलर के बारे में।
इसलिए इस कृष्ण को कहते हैं सुप्रीम कंट्रोलर्स। हम कौन है? हम माइन्यूट कंट्रोलर हैं, हम छोटे मोटे कंट्रोलर हैं, बट कृष्ण है सुप्रीम कंट्रोलर। और वाकई में हम कैसे कंट्रोल होते हैं? हम कंट्रोल होते हैं प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से, सत्व गुण, रजस गुण और तमोगुण। सत्व, रजो, तमो, इन 3 गुणों के माध्यम से कंट्रोल होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि एक जीव जो है कठपुतली के समान है, तो ये तीनों गुण जो है ये कठपुतली के समान हमें कंट्रोल करते हैं। लाइक इफ यू हैव अ पिक्चर, मधुर प्रभु, कैन यू शेयर? ये 3 गुण जो है प्रकृति, ये एक जीवात्मा को कठपुतली के समान कंट्रोल करते हैं, isn't it? So, अब ये 3 गुण, ये प्रकृति, ये किससे कंट्रोल में है? ये भगवान के कंट्रोल में है, isn't it? उदाहरण के तौर पे जैसे हम सोचते हैं हम बड़े कंट्रोलर हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसी कितनी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमको बूढ़ा होना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए हमको बूढ़ा होना पड़ेगा, ना चाहते हुए हमको बीमार होना पड़ेगा। जैसे ये फोटो आपके सामने, ये 3 गुण हैं जो एक जीवात्मा को कंट्रोल कर रहे हैं। सो इसके द्वारा होता है। तो ना चाहते हुए हमको बूढ़ा होना पड़ेगा, ना चाहते हुए हमको शरीर में ढेरों सारी बीमारियां आएंगी, ना चाहते हुए हमारा मृत्यु होने वाली है। सो ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें कृष्ण के कंट्रोल में है। कृष्ण एक श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें कहते हैं, मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद वर्षते इंद्रो दहति अग्निर मृत्युश्चरति मद भयाद। तो भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, मद भयाद वाति वातो अयम, जो हवा बह रही है वो मेरे डर के कारण बह रही है। कृष्ण सिंह सूर्यस्तपति मद भयाद, सूर्य टाइम टू टाइम उग रहा है या फिर उठ रहा है या फिर सूर्य अस्त हो रहा है, ये किसके डर के कारण? कृष्ण के डर के कारण। अगर सूर्य बोले नहीं यार मैं इतने समय से कार्य कर रहा हूँ, मैं भी थोड़ा रेस्ट लेना चाहता हूँ, गिव मी अ ब्रेक, एक संडे मुझे दो, अरे पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी एक संडे अगर छुट्टी मना लिया तो सूर्य देव। सो हाउ डज दिस सन इज वर्किंग सो परफेक्टली? इतना पूर्णता में सूर्य कैसे कार्य कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण का डर है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो कृष्ण कैन डू समथिंग वेरी रॉन्ग। तो हवा कृष्ण के डर के कारण चलती है, हवा ब्रेक नहीं लेती। सूर्य कृष्ण डर के कारण चलता है, सूर्य ब्रेक नहीं लेता। उसी प्रकार से मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद वर्षति इंद्रो, बारिश होती है, दहति अग्निर, अग्नि जलती है, मृत्युश्चरति मद भयाद, और मृत्यु भी कार्य करती है परफेक्टनेस में। एज श्योर एज डेथ वी से, isn't it? मृत्यु की तरह एकदम निश्चित। तो ये सारी चीजें क्यों परफेक्टनेस में काम कर रही हैं? क्योंकि कृष्ण का डर है, कृष्ण चला रहे हैं। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये किसके समान है? जैसे हम देखते हैं ना कि एक माला है, आप में से किसी ने माला पहन रखी होगी, एक मोतियों की माला। तो मोतियों की माला, तो मोती कितना परफेक्टली डिजाइंड है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, माला कितना सुंदर शेप लेती है। लेकिन इस माला को माला बनाने के पीछे किसका सबसे बड़ा मेन रोल है? इन सारे मोतियों को एक साथ टिकाने के पीछे किसका सबसे बड़ा मेन रोल है? वो है धागे का। धागा दिखता नहीं, हम ये नहीं बोलते हैं ये मोती और धागे की माला है, हम क्या बोलते हैं? मोतियों की माला है, लेकिन मुख्य भूमिका है धागे की। सो कृष्ण कहते हैं मैं उस धागे के समान हूं जो दिखता नहीं, लेकिन मेरे कारण ही सारी चीजें अपने आप में अच्छे से चल रही हैं। अगर मैं उस धागे स्वरूप मैं वहां से हट जाऊं तो सारे मोती बिखर जाएंगे। जैसे ताश के पत्ते एकदम बिखर जाते हैं, ऐसे सारे मोती एकदम बिखर जाएंगे, सारी चीजें एकदम बिखर जाएंगी। दूसरा उदाहरण, हम ट्रैफिक लाइट हम जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। सो एक चौराहे पर, उस चौराहे पर कंट्रोल करने के लिए कितने लोग लगते हैं? एक ट्रैफिक लाइट लगती है, उसके अलावा पुलिस वाले को खड़ा करना पड़ता है, उसके बाद भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन क्या प्लैनेटरी सिस्टम्स में भी कभी मिला कि नहीं ये चलो अभी मार्स और अर्थ का टक्कर होने वाला है, या फिर ये ग्रह वो ग्रह आपस में टक्कर होने वाला है? अरे करोड़ों सालों से चलते आ रहे हैं, लेकिन किसी ग्रह के आपस में कोई टक्कर नहीं है। दे आर वर्किंग सो परफेक्टली। कृष्ण कहते हैं धार्यामी हम वो, जैसा मैं अपनी शक्ति के माध्यम से उनको धारण करे हुआ हूँ, isn't it? So that is the meaning. So Krishna is the ultimate controller. भगवान जो है वो स्वयं परम नियंता है। और उसी प्रकार से भगवान कौन है? भगवान की एक और संज्ञा है जिसे कहते हैं हम कि भगवान है सुप्रीम इंजॉयर। भगवान सारी चीजों को एंजॉय करने वाले भी हैं। सबके मालिक भगवान है, तो सबका एंजॉयमेंट या फिर सबका आनंद
भगवान को देना चाहिए, और भगवान को आनंद देने से वो आनंद सभी जीवात्माओं को डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे? 2 उदाहरण शास्त्रों में देते हैं बहुत अच्छे। कहते हैं यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम् अच्युतेज्जा। कहते हैं कि पेड़ है, पेड़ का सबसे सुंदर पार्ट क्या है? उसका फल, उसके फूल, उसकी सुंदर सुंदर पत्तियां, ये सारी चीजें। पर अगर हमको इनकी सृष्टि करना है, इस फल को, इस फूल को, इन पत्तियों को अगर हमको एनर्जी देना है, शक्ति देना है, तो क्या करना होगा? पानी देना होगा। पानी कहाँ पे देना होगा? पत्तियों में, फल में, फूल में? नहीं, पानी जड़ में देना। यथा तरोर्मूल, तो मूल को निषेचनेन, मूल में पानी डालने से, जड़ में पानी डालने से तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा, स्कंद, भुजा, उपशाखा, फल फूल सब में अपने आप पानी पहुंच जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि हमारा पूरा शरीर है, हमारा पूरा शरीर इतना अच्छे से कार्य कर रहा है, इतना सुंदर शरीर है, पूरे शरीर में शक्ति है, isn't it? तो इस शरीर में शक्ति को पहुंचाने के लिए अलग से हमें आंखों को खाना नहीं देना है, अलग से हमें नाक में खाना नहीं डालना है, कान में खाना नहीं डालना है, हमें पेट में खाना डालना है। पेट में अगर खाना डाल दिया तो पेट क्या करेगा? पूरे शरीर में शक्ति पहुंचा देगा। उसी प्रकार से भगवान की अगर सेवा करी तो पूरे जगत में अपने आप सबकी सेवा हो जाएगी। सो मानव सेवा ही माधव सेवा नहीं है, लेकिन माधव सेवा मानव सेवा जरूर है। माधव की सेवा करने से सारे मनुष्यों की सेवा होगी, अपने आप होगी। जैसे हम भगवान को यहाँ पर डेली 56 भोग लगाते हैं, तो भगवान को 56 भोग लगाएंगे तो भगवान भूखे नहीं है कि भगवान पूरा खा गए, बोले ठीक है अभी तुम जाओ अपने घर में, मैंने पूरा खा लिया। भगवान वो पूरा 56 भोग अपनी कृपा के रूप में वापस हमें दे देते हैं। फिर वो 56 भोग कौन खाता है? वो सारे भक्त लोग खाते हैं। मंदिर में जितने दर्शनार्थी आते हैं सबको भगवान का भोग देते हैं, isn't it? तो सब लोग भगवान का भोग खाते हैं। सो ये सिस्टम है। ऐसे हम भगवान की जितनी सेवा करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर इस पूरी सृष्टि के सारे कार्यों को अच्छे से चलाते हैं। भगवान वर्षा करवाएंगे, भगवान इस जमीन में उपजाऊ क्षमता रखेंगे, बीजों को प्रदान करेंगे, पेड़ों को प्रदान करेंगे। सो एवरीथिंग कृष्णा विल मेक ऑल अरेंजमेंट्स रन परफेक्टली। ये भगवान है। सो ये बहुत जरूरी है। और वाकई में एक्चुअली आनंद जो है दूसरों की सेवा करने से आता है, भगवान की सेवा करने से आता है, खुद के एंजॉयमेंट से नहीं आता। खुद का एंजॉयमेंट हम कितना करेंगे, हम लिमिटेड है, लेकिन हम सेवा अनलिमिटेड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको गुलाब जामुन दिया जाए, गुलाब जामुन खाना किसको पसंद है? सबको पसंद है। आपको गुलाब जामुन दिया जाए, एक गुलाब जामुन दिया जाए तो हम बड़े ही दिलचस्प होके खाएंगे, वाह प्रभु जी वाह, मजा आ गया, क्या भगवान का प्रसाद दिया, अभी एक और लो, 2 और मजा बढ़ जाएगा, 2 और लो, 4 खा लिए जी, क्या बात है, जीवन में इतने गुलाब जामुन एक साथ नहीं खाए, अच्छा 4 खाए तो एक काम करो 4 और लो, 8 और लो, 16, 1000 आपको दे दी, कितने खाओगे बताओ? 2000 दे दिए, 10,000 दे दिए, तो 10,000 गुलाब जामुन आपके सामने हैं, आप खा नहीं पाएंगे। अरे 8-10 से ज्यादा खाओगे बदहजमी हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, isn't it? लेकिन वही 10,000 गुलाब जामुन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान हमारे 4 हाथ दे दीजिए, हम चारों हाथों से सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बांटने में कितना मजा आएगा। आ जाओ सब आ जाओ, सबको भगवान का गुलाब जामुन देंगे, ये लो वो लो वो लो वो लो, कितना मजा है। सो सेवा करने में ज्यादा मजा है, आनंद लेने में नहीं। खुद की इंद्रिय तृप्ति करने में इतना मजा नहीं, सेवा करने में ज्यादा मजा है। सो जीवात्मा की सेवा करने में अगर इतना मजा है, तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, सोचिए कितना मजा उसको आता होगा, कितना एंजॉयमेंट उसको मिलता होगा। इसलिए कहते हैं आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। भगवान की सेवा के लिए बोलते हैं कि जो भक्त भगवान की सेवा करता है उसका आनंद रूपी समुद्र बढ़ता रहता है। समुद्र है, समुद्र वैसे ही अनलिमिटेड होता है, और ये समुद्र किसका समुद्र है? आनंद का समुद्र है, दुख का नहीं। जैसे इसमें भी आया था ना श्लोक में, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, तो सुख से बढ़कर आनंद, ये आनंद का समुद्र है और लिमिटेड नहीं है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, इट इज इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। सो जो भक्त भगवान की सेवा करते हैं उनके जीवन में इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि उनका आनंद की कोई सीमा नहीं, वो हमेशा बढ़ता जाता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम और प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम,
हर कदम पे ऐसा भक्त पूर्ण अमृत का आस्वादन करता है। तो ये शिक्षा अमृत हमें वाकई में अमृत दे सकती है, जिसका हर कदम पे हम आस्वादन कर सकते हैं, और ये भक्ति का आनंद हमारा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। सो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि वाकई में भगवान जो है, भगवान सारी चीजों के भोक्ता हैं, भगवान सारी चीजों के इंजॉयर हैं, क्योंकि भगवान मालिक हैं, इसलिए मालिक की सेवा करना बहुत जरूरी है। जैसे दूसरा उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आपके घर में एक नौकरानी कार्य करती है, isn't it? और आप घर वाले एक दिन बाहर गए पार्टी में, और नौकरानी पीछे से घर साफ कर रही थी। तो घर साफ कर रही थी तो उसने देखा, यार मैं डेली झाड़ू तो लगाती हूँ, बिस्तर पे साफ भी करती हूँ, बिस्तर पे चादर भी बिछाती हूँ, एक बार थोड़ा लेट के देखूं बिस्तर कितना नरम है, isn't it? तो वो थोड़ा लेट करके देखती है बिस्तर कितना नरम है, और जैसे बिस्तर पे लेटती है, फिर वाह इतना नरम बिस्तर, तो बिस्तर पे थोड़ा जंप करने लगती है, जीवन में इतने नरम बिस्तर पे नहीं बैठी। तो ऐसे करते उसको 5 मिनट में बिस्तर पे नींद आ जाती है, और नींद ऐसी आती है उसको लगता है मैं 5-10 मिनट में उठ जाऊंगी, लेकिन वो 1-2 घंटा निकल जाते हैं, घर पे आप लोग वापस आ जाते हैं, मालिक वापस आ जाता है। और मालिक जब गेट खोल के देखता है, अरे नौकरानी बिस्तर पे, तो मालिक क्या हाल करेगा नौकरानी का, वहीं पे भगाए, isn't it? तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी बिस्तर पे सोने की? So that is the meaning. तो नौकरानी के लिए, एक सेवक के लिए उसका सुख कहाँ पे है? जब वो अपने स्वामी की पूरे निष्ठा पूर्वक सेवा करेगी, तो स्वामी अगर प्रसन्न हो जाएगा तो क्या नहीं करेगा। ऐसे कितने प्रैक्टिकल केसेस हैं कि एक मालिक अपने नौकर को बहुत अच्छे से टेक केयर करता है, उसको घर गिफ्ट करता है, उसको कार भी गिफ्ट कर देता है। जो नौकर बहुत अच्छे से मालिक की सेवा कर रहा है और मालिक भी उसका अच्छा है, तो मालिक उसको सारा उसकी संभालने के लिए रेडी रहता है। उसी प्रकार से जितना प्रेम से हम भगवान की सेवा करेंगे, तो भगवान क्यों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे? वाई कृष्णा विल नॉट टेक अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? भगवान तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही हैं, बस हमें ये देखना है कि हम अच्छे से उनकी सेवा कर रहे हैं कि नहीं। सो दिस वी हैव टू लुक फॉर, सो दैट इज अवर कंसर्न। सो भगवान हमारे भोक्ता हैं, ये भोक्ता को जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हमने ये चीज जान ली, तो हम समझ सकते हैं कि जीवन में हमारे शांति परफेक्ट है, गारंटीड है, जीवन में आनंद हमारे गारंटीड है। थैंक यू सो मच। सो आई विल स्टॉप हियर। बेसिकली हमने एसेंस में 3 चीजें चर्चा करी। ज्ञान क्या है? ज्ञान को कहते हैं भौतिक आध्यात्मिक को जानना और साथ में उनके कंट्रोलर को जानना। तो भगवान की परिभाषा हमने देखी। भगवान की परिभाषा के साथ हमने देखा कि भगवान कैसे सारी चीजों के मालिक हैं। साथ में हमने देखा मालिक होने के साथ साथ भगवान कैसे कंट्रोलर भी हैं, और कंट्रोलर के साथ साथ भगवान कैसे एंजॉयर भी हैं। अगर ये 3 चीज किसी ने जान ली, तो वो व्यक्ति जो है स शांति मापनोति, वो शांति प्राप्त कर सकता है, वो आनंद को प्राप्त कर सकता है। थैंक यू सो मच। सो आई स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकता हूँ। Hare Krishna, thank you so much, Prabhuji, for giving such a wonderful talk. So we have some questions. I think so. We have one hand raised by Aditya. So Aditya, आप unmute कर सकते हैं and you can ask question. हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हेलो Yes, yes, you're audible. हाँ जी हरे कृष्णा प्रभु जी। तो एक्चुअली में आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, और काफी मेरे को भी काफी टाइम से ये दिमाग में आ रहा था। बट जैसे अभी हम कोविड में घर पे बैठे हुए हैं, हम कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो ऐसे में घर बैठे बैठे हम कैसे कर सकते हैं ये चीज? ये थोड़ा उस पर प्रैक्टिकल टिप्स दे दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न आदित्य आपका। जस्ट अ सेकेंड। तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। घर पे बैठकर हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? आपको ये आगे सीखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी छोटा सा आंसर मैं आपको ये देता हूँ कि एक्चुअली ये चीज हमें समझना चाहिए कि भगवान हर जगह, कृष्णा इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। तो भगवान हर जगह होने के नाते भगवान मंदिर में भी हैं और भगवान अपने घर में भी हैं, आपके घर में भी हैं, आपके नजदीक हैं। भगवान सबसे नजदीक है, भगवान हमारे हृदय में भी है। इसलिए भगवान की जो सबसे बड़ी सेवा है, भगवान की सबसे बड़ी सेवा कैसे होती है? भगवान का नाम जप करके। सो वी हैव टू चैंट कृष्णा's नेम, दैट इज व्हाट इज वांटेड। सो
हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए, यही सबसे बड़ी सेवा है। एक्चुअली चारों युगों में कलयुग के लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के नाम का जप करने का मौका मिल रहा है। ये इतनी सरल विधि है, इतनी सरल विधि और किसी युग में किसी के पास नहीं है। कहते हैं, नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति पिता नियमितः स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृश्यम यहाँ जनिनानुराग। कि भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता। और भगवान इतने कृपालु हैं कि इसको जपने के लिए भगवान ने कोई नियम काल समय ऐसा कुछ भी बाधा नहीं दी। सो घर में रहकर भगवान का नाम जप करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के द्वारा हम भगवान के नाम के रूप में सेवा कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। जब हम नाम लेते हैं तो भगवान हमारे नजदीकी है, भगवान हमारे जीवन पर डांस कर रहे हैं। तो भगवान को हम बुलाते हैं, इस नाम के माध्यम से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान को हम सेवा में, हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएं। उसके अलावा एक मुख्य चीज जो है कि हमारे घर के मंदिर में भगवान का एक छोटा सा पिक्चर होना चाहिए, एटलीस्ट पिक्चर होना चाहिए, और हम रेगुलरली उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें और उनको भोग लगाएं। हम घर में भगवान का एक छोटा सा पिक्चर रख सकते हैं कृष्ण का, और वहां पर जो भी घर में बन रहा हो सबसे पहले उसे भगवान को भोग लगाया जाए, और वो भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में बाकी सब घर वाले ग्रहण करें। तो ये भगवान की सेवा हो गई। सुबह उठते ही आप भगवान के मंदिर में भगवान के लिए नहा धोकर कुछ थोड़ी सी सेवा पूजा कर सकते हैं। कुछ फूल भगवान को दीजिए बगल के पेड़ से तोड़कर, और भगवान को आप थोड़ा अगरबत्ती दिया, ऐसा कुछ। सो कृष्ण कहते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्ता, पुष्प, फल और पानी, तो बेसिकली भगवान की पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं। तो इन चीजों के माध्यम से हम देखेंगे कि कितनी जल्दी भगवान के लिए हमारा प्रेम जागृत हो रहा है। इस सेवा के माध्यम से हमारा भगवान के लिए प्रेम जागृत हो रहा है। डज दिस आंसर्स? Okay, thank you. Next question. So there is a question from the chat box. I think so Harish, आपका ये वाला क्वेश्चन आंसर हो गया होगा कि भगवान की सेवा कैसे करें। So there is one more practical question कि We cannot hear you, Hardik. Hare Krishna, can you hear me now? Yes, Prabhu. Prabhu, so there is one more question कि ये वैराग्य को कैसे प्राप्त किया जाता है? Okay, वैराग्य, it's little off track, but ठीक है। वैराग्य असली वैराग्य क्या है? असली वैराग्य है कि हम जहाँ पर हैं, हम जिन भी वस्तुओं के साथ हैं, जिन भी व्यक्तियों के साथ हैं, उन्हें खुद का न मानते हुए उन्हें भगवान का समझना चाहिए। समझना कि ये जानना चाहिए कि वो भगवान के ही हैं। जैसे आज हमने देखा कि भगवान ही सारी चीजों के मालिक हैं। तो वैराग्य की परिभाषा ये नहीं कि हमें सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना चाहिए या हिमालय में चले जाना चाहिए, नहीं, दैट इज वैराग्य। वो वैराग्य है, लेकिन इससे भी बढ़कर एक वैराग्य है कि सारी चीजें भगवान की है। अरे हम छोड़ेंगे क्या, हमारा तो कुछ है ही नहीं, isn't it? हमारा जब होता तब तो हम छोड़ने की बात करते, जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हम छोड़ेंगे क्या? तो वैराग्य कैसे? मान लीजिए कि मैं जाऊंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने, बोलूंगा ठीक है जाओ मैं तुम्हें त्याग करता हूँ अरे मेरा थोड़ी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ? उसी प्रकार से मैं जिस घर में रह रहा हूँ, जिन घर वालों के साथ रह रहा हूँ, जो चीजों का उपयोग कर रहा हूँ मेरी है ही नहीं, तो मैं त्याग कैसे कर सकता हूँ? तो असली वैराग्य वो है कि हर चीज का संबंध कृष्ण से जानना चाहिए और उसे कृष्ण की सेवा में ही लगाना चाहिए। वो है असली वैराग्य। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको एक बटुआ मिला, उस बटुए में बहुत सारे रुपए रखे, तो एक व्यक्ति सोचेगा नहीं मेरा तो नहीं, चलो इसको छोड़ के चल देते हैं। दूसरा व्यक्ति सोचेगा नहीं अरे वाह चलो बढ़िया मौका मिल गया, उठा के अपनी जेब में डाल के चल लेगा। और तीसरा व्यक्ति सोचेगा नहीं किसी जिस व्यक्ति का है मैं उसके पास देकर आता हूँ, तो उसको खोलकर उसका आईडी कार्ड निकालकर एड्रेस देखकर उसके पास देकर आएगा। तो तीनों व्यक्तियों में से श्रेष्ठ कौन है? वो जो बटुआ जिसका है उसको देकर आएगा। तो जो व्यक्ति अपने लिए उसको ले लेता है वो है भोगी। जो व्यक्ति छोड़ता नहीं मेरा नहीं, मुझे लेना देना नहीं, चले जाता है, वो है त्यागी। और जो व्यक्ति देखता है अरे किसी का है उसके पास देकर आता हूँ, तो वो है भक्त। तो कौन सबसे बड़ा वैरागी है? जो जिसका है उसको देना। उसी प्रकार से सब कुछ भगवान का है,
तो वैराग्य क्या है? सब चीजों को भगवान की सेवा में उपयोग करना, वो वैराग्य। तो उसी प्रकार से आपका घर ये जानना चाहिए कि ये भगवान का घर है, उसे भगवान का घर मानकर भगवान की सेवा कीजिए, वहां पर भगवान को मंदिर के रूप में स्थापित कीजिए, एक बहुत अच्छा स्थान दीजिए। आप जो खाना बना रहे हैं ये सोचकर बनाइए कि भगवान के लिए बना रहे हैं और प्रसाद के रूप में हम सब खाएंगे। आपके घर में अगर आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, तो ये सोचिए कि ये भगवान की संतानें हैं, ये भगवान के सेवक सेविकाएं हैं, तो मुझे इनकी सेवा अच्छे से करना चाहिए भगवान के संबंध जानकर। इसको कहते हैं असली वैराग्य। इसको संस्कृत में एक श्लोक में कहते हैं, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो हर चीज को कृष्ण के संबंधित जानकर उसे कृष्ण की सेवा में युक्त करना चाहिए, वही वैराग्यम उच्यते, उसी का नाम वैराग्य है। आई होप इट आंसर्स। Hare Krishna. Ghanshyam Soniji, you can unmute yourself and ask the question. Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण घनश्याम प्रभु जी। Prabhuji, my question is why our religion is not our strength like Christian and Muslim. I am not talking about any good or bad. मैं अच्छा बुरे की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, बट उनका जो रिलीजन है उस तरह से एक स्ट्रेंथ है, that's why they got स्प्रेड हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, बट तो हमारे रिलीजन में क्यों नहीं है? और सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि आपने कहा गॉड इज एवरीवेयर, एग्री, 100% एग्री आपने जो कहा, तो अगर हम ऐसा कहेंगे तो फिर द्वादश ज्योतिर्लिंग जैसी जगह है, उनका महत्व क्या रह जाएगा फिर? वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न मैं हिंदी में बोलता हूँ कि अध्यात्म, हम हमारे हिंदू धर्म में देखते हैं कि हमारे अध्यात्म में शक्ति क्यों नहीं है। एक्चुअली अध्यात्म में बहुत शक्ति है, हमारे धर्म में बहुत शक्ति है, बट समस्या ये है कि हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे। हम भारतीय लोग उसको समझने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं। जैसे आप लोग इतने समय से इस्कॉन संस्था से जुड़े हैं, तो आपको जुड़कर जो ज्ञान मिल रहा है, अभी लग रहा होगा कि वाकई में हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म कितना महान है, कितनी चीजें हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, अभी आपने समुद्र की सिर्फ एक बूंद ही चखी है, पूरा समुद्र आपके लिए बाकी है, इतनी चीजें जानने के लिए, इतनी चीजें अपने जीवन में लगाने के लिए। इसलिए जब तक हम किसी चीज के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, उसका महत्व नहीं जानेंगे, जब तक हमें महत्व पता नहीं होगा, हम उस चीज को हमारे जीवन में नहीं लगाएंगे, दूसरों को बताएंगे नहीं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बढ़िया अपनी बोगी में बैठे हैं, फर्स्ट एसी में, और आपको अपनी दुनिया में आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके बगल में एक व्यक्ति आके बैठते हैं, आपको लगता है ठीक है, कोई तो आकर बैठा होगा, लेकिन बगल वाला व्यक्ति बोलता है, अरे तुम्हें पता नहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बोले क्या बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री? अरे 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 प्रधान, अरे साहब आप बैठिए, साफ करके आप चादर बिछा के, तो सर आप यहाँ बैठिए, आप क्या लेंगे, ठंडा पानी, गर्म चाय, कॉफी? तो ऑटोमेटिकली सेवा करने का भाव आ जाए। तो हमको जब उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं है, तब हम बोलते हैं ठीक है, कोई भी होगा आकर के बैठ जाएगा, अपने को क्या लेना देना। लेकिन जैसे उस व्यक्ति के बारे में हम सुनते हैं, उसका महत्व जानते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा संबंध क्लियर हो जाता है और हमारे अंदर सेवा की भावना जागृत हो जाती है, और हम दूसरों को बताना भी चाहते हैं, सर मैं एक सेल्फी खिंचवा लूं क्या आपके साथ, और पूरी दुनिया बैठेंगे, अरे मैं प्रधानमंत्री के साथ बैठा था, तुम्हें पता है। सो ये महत्व कैसे आएगा कि पहले हमें हमारे धर्म के बारे में सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जितना हम सनातन धर्म के बारे में सुनेंगे, जानेंगे, ऑटोमेटिकली उसका महत्व क्लियर होगा। जितनी मात्रा में महत्व क्लियर होगा, उतनी मात्रा में हम अपने जीवन में भी अपनाएंगे और साथ में पूरी दुनिया में उसका प्रचार करेंगे। दैट इज माई सिंपल आंसर। तो आप इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनिए, आप देखेंगे दुनिया में इतने लोग हैं जो इसका प्रचार कर रहे हैं, हमें और भी लोगों की जरूरत है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसको समझें और इसका प्रचार करें। Does this answers? और यह सेकंड क्वेश्चन, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि भगवान हर जगह हैं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष जगहों का महत्व इतना ज्यादा क्यों है? यस, भगवान हर जगह हैं, लेकिन हम हर जगह भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। विशेष जगह हम जरूर भगवान से हमारा संपर्क आसानी से बिठा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पानी कैसे बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हर जगह है क्या? हर जगह, पूरी हवा में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि पानी हम कहीं से भी लेके पी लेंगे, चलो प्यास लगी तो आज यहाँ से ग्लास भर के पानी पी, आज यहाँ से पी लिया, वी कैन नॉट डू दैट। लेकिन पर्टिकुलरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जहां मिलाकर पानी बनाया जाता है, वहां से हम पानी ले सकते हैं। या फिर बादलों में एक मिश्रण होता है, बादल हमें पानी देते हैं तो पानी हम यूज कर लेते हैं।
नदी तालाब के माध्यम से। उसी प्रकार से भगवान हर जगह हैं, लेकिन हम हर जगह भगवान को देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो बुद्धि की कमी है, हमारे अंदर वो शक्ति की कमी है, वो अंडरस्टैंडिंग की कमी है। लेकिन भगवान कृपावश ऐसी जगह में साक्षात प्रकट रूप में हर जगह रहते हैं, जैसे भगवान अपने विग्रह रूप में। तो मंदिर में, भगवान के विग्रह में, ऐसी जगहों पर हमको भगवान को देखना बहुत आसान हो जाता है। भगवान के साथ संपर्क बिठाना, भगवान को जानना, भगवान को समझना, उनका महत्व जानना बहुत आसान हो जाता है। सो ये हमारी सुविधा के लिए भगवान इतनी सारी लीलाएं करते हैं, भगवान इतने सारे मंदिर का निर्माण करते हैं, इतनी सारी लीला स्थलियां हमें देते हैं, ताकि हम आसानी से भगवान को समझ पाएं, भगवान के पास जा पाएं। आई होप इट आंसर्स। थैंक यू। तो फ्रॉम द चैट बॉक्स विभूति जी का एक प्रश्न है कि वो सनातन धर्म के बारे में और जानना चाहते हैं कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट। वेरी गुड। सनातन धर्म, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सनातन धर्म बहुत सारी चीजें हमें बताता है। आप हमारे सेशंस में जुड़े रहेंगे रेगुलरली तो आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी। और आज उसका छोटा सा पोर्शन हमने आपको बताया कि भगवान की इंफीरियर शक्ति, भगवान की सुपीरियर शक्ति और भगवान जो खुद कंट्रोलर है उनके बारे में जानना। उसी प्रकार से पूरे वैदिक शास्त्रों को 3 भागों में बांटा जाता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो भगवान से हमारा संबंध क्या है, उस संबंध को जानना, उस संबंध को हम दोबारा कैसे स्थापित कर सकते हैं, उस प्रक्रिया को समझना, उस प्रक्रिया का पालन करना, और उस संबंध को स्थापित करने से, प्रक्रिया के पालन करने से हमें आखिर में मिलेगा क्या, हमारा प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द एंड रिजल्ट, दैट इज प्रयोजन, भगवान का प्रेम, वो परम आनंद। तो पूरा वैदिक शास्त्र बेसिकली इन 3 चीजों के बारे में बात करता है, और ये तीनों चीजें बहुत वास्ट हैं, बहुत विशाल हैं। आपको जितना आप श्रवण करते जाएंगे उतना आपको और क्लियर होता जाएगा। सो आप बने रहिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई रिक्वेस्ट साहिल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा साहिल दुबे जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो कोरोना वायरस है ये कब वेनिश होने का प्रोबेबिलिटी लग रहा है, पॉसिबिलिटी लग रहा है, और ये इज इट आर्टिफिशियल और नेचुरल वायरस? कि इतना जो पूरा तबाही मचा दिया पूरे विश्व के अंदर, तो अभी जो सेकंड वेव का जो जितना भी न्यूज सुनने में आता है उससे तो पूरा तकलीफ हो रहा है, मतलब पूरा हृदय कांप जाता है। वाकई में अभी जो इस पृथ्वी पर चल रहा है, किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में ऐसा नहीं सोचा था। और मौत का तांडव भी चल रहा है। कुछ लोग बोले थे, कुछ दिन पहले हमारे मंदिर में एक चिट्ठी आई थी, एक भक्त ने भगवान के लिए चिट्ठी लिखी थी, भगवान ये क्यों हो रहा है, आप जवाब दीजिए, ऐसा कैसे अंत होगा। सो उनका कांटेक्ट नंबर उसमें नहीं लिखा था, नहीं तो हम लोग जवाब दे सकते थे। सो इसका अंत कब होगा, कैसे हुआ, कब तक चलेगा, इतना डिटेल्स मुझे पता नहीं। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। लेकिन एक चीज हम जानते हैं, भक्त के रूप में हम ये सारी चीजें जानते हैं कि ये सब भगवान के कंट्रोल में ही है, भगवान के द्वारा ही, भगवान के नियंत्रण के कारण ही हो सकता है। हमारी गलतियों की वजह से हमने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, इसलिए हमारी सजा हमको मिल रही है, उस कारण भगवान ने इसकी उत्पत्ति की है, और भगवान के कंट्रोल में भी है। तो अभी हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम गड्ढे में गिर गए, तो अभी ये सोचने का समय नहीं है कि इस गड्ढे से हमको किसने धक्का दिया, सबसे पहले देखें गड्ढे से बाहर कैसे निकले। इसलिए इस परिस्थिति में कब खत्म होगा, वी डू नॉट नो। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, सारे देश की सरकारें पूरे प्रयास कर रही हैं, सो लेट अस डिपेंड ऑन देम। साथ ही साथ हम भगवान से प्रार्थना करें। हमारे हाथ में क्या है कि इस कठिन परिस्थिति में कैसे हम भगवान की शरण ले सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं, हमसे जो गलतियां हुई है हम उनके लिए माफी मांग सकते हैं, भगवान से क्षमा याचना कर सकते हैं, और भगवान पर भरोसा रख के, भगवान के नाम जप करके भगवान से हमारा संबंध दोबारा स्थापित कर सकते हैं। सो यही चीज हमारे हाथ में है, लेट अस फोकस ऑन दैट। भगवान की कृपा से धीरे धीरे सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। बाकी आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर्स। ओके, हरे कृष्णा प्रभु।
So we'll take just one last question. उसके बाद आपके चैट बॉक्स में एक नंबर सेंड कर दिया गया है, तो जिसके भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड हैं, आप उस क्वेश्चन वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उस नंबर पे सेंड कर सकते हैं, एंड वी मेक श्योर कि आपके हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर किया जाएगा. सो देयर इज प्रभु जी, इतनी देर से हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बारे में चर्चा करते आ रहे थे. सो देयर इज अ क्वेश्चन कि ही वांट्स टू नो दैट व्हाट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड व्हाट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? बहुत अच्छा, वेरी नाइस क्वेश्चन. सो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में अंतर क्या है? आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत में अंतर क्या है? गीता में इसका विश्लेषण आता है, जिसमें कहते हैं कि भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है. इट इज रिफ्लेक्शन, अपोजिट रिफ्लेक्शन. इसलिए वास्तविक जो चीज है, वास्तविक आनंद हमें भौतिक जगत में नहीं मिलता, आध्यात्मिक जगत में मिलता है. तो रियलिटी एग्जिस्ट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द इमिटेशन और द रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट इन मटेरियल वर्ल्ड. वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में है और उसका नकल या फिर उसका छाया जो है भौतिक जगत में है. उदाहरण के तौर पर, जैसे इफ यू हैव द पिक्चर यू कैन शो कि अगर एक नदी किनारे कुछ पेड़ हैं या फिर एक तालाब किनारे कुछ पेड़ हैं, तो उन पेड़ों को हम देखते हैं तो पेड़ों की छाया हमें तालाब में कैसे दिखती है? उल्टी. पेड़ों का जो ऊपर वाला भाग है वो तालाब में सबसे नीचे दिखेगा और पेड़ों का जो नीचे वाला हिस्सा है वो तालाब में सबसे ऊपर दिखेगा. तो ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत है. अभी कोई व्यक्ति फल खाना चाहता है, आम खाना चाहता है, तो वो व्यक्ति नीचे देखेगा, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है बरगद का पेड़ है, इसमें आम नहीं होते, लेकिन मान लीजिए आम का पेड़ है, तो अगर कोई व्यक्ति नदी में देखेगा, पानी में देखेगा, तो उसको आम तो नीचे दिखेगा. अभी वो पानी में जाकर आम तोड़ना चाहेगा तो उसको मिलेगा क्या? नहीं, आम तो नहीं मिलेगा, आम तो नहीं तोड़ पाएगा, अपना माथा जरूर तोड़ पाएगा. सो आम वहां नहीं मिलेगा. आम कहाँ मिलेगा? उसको पेड़ पर मिलेगा. उसको पानी से बाहर आकर पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, है ना. उसी प्रकार से हम इस भौतिक जगत में ये रिफ्लेक्शन सुख देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर नहीं है. वो आध्यात्मिक जगत में है. तो आध्यात्मिक जगत में जाकर हमें वो मिलेगा, भगवान के संपर्क में आने से हमको वो मिलेगा. दैट इज द पॉइंट. तो गीता में इसका छोटा सा भगवान विश्लेषण करते हैं, जिसमें कहते हैं न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो धाम है उसमें न तद्भाषते सूर्यो, उसमें सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती. सूर्य से वो जगत रोशन नहीं होता. न शशांको न पावकः, न तो चंद्रमा से होता है न अग्नि से होता है. वो स्वतः अपने आप रोशन है. जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, जो नीचे है, नीचे भौतिक जगत है, ऊपर आध्यात्मिक जगत है. तो ये उल्टे के समान है. भौतिक जगत डार्क है, नेचुरली डार्क है. यहाँ पर डार्कनेस है. यहाँ पर रोशनी के लिए हमें अरेंजमेंट्स करना पड़ता है. या तो सूर्य चाहिए, या चंद्रमा चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आग चाहिए. लेकिन आध्यात्मिक जगत नेचुरली एनलाइटेंड है. वहां पर डार्कनेस नहीं है, वहां पर रोशनी ही रोशनी है. यहाँ पर दुख है, कष्ट है, वहां पर आनंद ही आनंद है. यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं. वहां पर नित्य जीवन है. न जन्म है, न मृत्यु है, न बीमारियां है, न बुढ़ापा है. हर एक व्यक्ति जवान है, हर एक व्यक्ति आनंद में. ये द्वंद्वों का जगत है. यहाँ पर सुख और दुख होंगे, यहाँ पर दिन और रात होंगे, यहाँ पर अच्छा और बुरा होगा. लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई द्वंद्व नहीं. वहां पर सारी चीजें नित्य हैं, हमेशा आनंद ही आनंद वहां पर है. तो यहाँ पर सारी चीजें नेचुरल हो जाती है. इसलिए वहां पर इतना आनंद है, जो हमारा इटर्नल होम है, वास्तविक घर है. तो भगवान कहते हैं कि एक बार जो व्यक्ति वहां पर चला गया तो दोबारा नहीं आता. यद गत्वा न निवर्तन्ते, आना भी नहीं चाहेगा. अरे बचपन में हम लोग कैडबरी का एडवर्टीजमेंट देखते थे ना, हाँ, कि कैडबरी नहीं, वो किसका एडवर्टीजमेंट था? एसएल वर्ल्ड में जाऊंगा मैं, घर नहीं आऊंगा मैं. सो एसएल वर्ल्ड लोगों को इतना अच्छा लगता था. तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत वैसी चीज है, इतना आनंद वहां पर है. हमेशा कृष्ण के साथ ग्वाल बाल खेल रहे हैं, गाय कृष्ण के साथ हैं, कृष्ण के मुख से उनकी बांसुरी की ध्वनि सुन रही हैं, गोपियां कृष्ण के साथ आनंद ले रही हैं, यशोदा माता कृष्ण की सेवा कर रही हैं. सभी के सभी व्यक्ति कृष्ण पर केंद्रित हैं, सभी के सभी व्यक्ति आनंद में. इस भौतिक जगत में सभी के सभी व्यक्ति खुद पर केंद्रित हैं, अपने आप को बीच में रखते हैं.
सब लोग मुझे देखें, मेरी प्रसन्नता करें, मुझे खाने के लिए दें, मुझे पहनने के लिए दें, मुझे गिफ्ट दें, बर्थडे है तो मेरा होना चाहिए। सो हम अपने आप को केंद्र में रखते हैं, इसलिए सभी दुखी। सो दिस इज द बेसिक कैटेगरी। आप और जुड़े रहेंगे तो आपको और सारी चीजें यहाँ पर जानने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। तो हम क्षमा चाहते हैं, आप सबके बहुत सारे प्रश्न हैं, हम सबको उत्तर भी देना चाहते हैं, लेकिन समय सीमा काफी कम है। आप लोग प्लीज अपने जितने क्वेश्चंस हैं, आप जो नंबर आपको चैट बॉक्स में मिला है, उस चैट बॉक्स में आपके नंबर, आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आप सबके क्वेश्चंस का हम जरूर आंसर करेंगे। Thank you so Hare much. Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for giving such a valuable time and such a wonderful lessons. I hope so. आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा. There are very nice questions. बहुत ज़्यादा questions थे. So we have one very nice thing for you कि ये जो सेशन हुआ है इसके बेसिस पे एक क्विज ऑर्गेनाइज करा जाएगा, जो कि आपको लिंक सेंड कर दी जाएगी आपके ग्रुप पे, एंड ताकि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हाउ मच द कंसेप्ट्स ऑफ द सेशन यू हैव एक्चुअली ग्रेस्प्ड। ओके, सो और ये जो सेशन है ये वीकली सेशन है जो आपने आज अटेंड किया है। सो ये वीक में एक बार होगा और उसके बेसिस पे एक क्विज रखा जाएगा। उसके जो भी विनर्स हैं उनका अनाउंसमेंट नेक्स्ट सेशन में होगा। और मृदुल प्रभु, जो आपने अभी एक पिक्चर दिखाई है लास्ट वाली, जिसमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड का पूरा लेवल्स दिए हुए हैं, वो प्लीज आप शेयर करिए कि बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए थे दैट पीपल वांट दोस पिक्चर्स, है ना, ताकि वो और ज्यादा अच्छे से समझ सकें उसको। सो मृदुल प्रो, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट कि आप ये वाला जो पिक्चर है वो आप लोगों को सेंड कर पाए। एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज stay with us. We'll be coming with such and exciting things. We'll be coming with such exciting and more interesting topics जो कि आप लोग को really bewilder कर देगा। You will be just amazed to hear कि कितने बढ़िया चीजें हैं जो actually हम miss out कर गए, जो हमें actually हमारे education system में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है, बिल्कुल नहीं बताया जाता है। So जो actually हमें life को जीना सिखाता है। So thank you all guys for staying with us. And we'll be seeing you in the next week. Hare Krishna. Thank you all so much. Stay home, stay safe. Good night.